دیکھو مجھے پتا ہے کہ ماحول بہت برا ہے، بس میں 2-3 جملوں میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس زمانے میں برائیوں کی لت پڑ جاتی ہے لوگوں، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے بعض لوگوں کو۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو دیکھ رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں، جو کیا کر رہے ہیں یار لائف کو انجوائے کرو، زنا بھی کر رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو یہ کر تو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ خدا سے ڈر بھی رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی کہ یار میں یہ غلط کر رہا ہوں؟ مجھے معلوم ہے بہت لڑکے فحش فلمیں دیکھتے ہیں پھر آ کے روتے ہیں کہ یار مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں عادت چھوٹ جائے مگر چھوٹ نہیں رہی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ غلط کام ہے، زنا غلط کام ہے، ہم چاہتے ہیں عادت چھوٹ جائے، چھوٹ نہیں رہی ہے۔ تو یہ دوسرا طبقہ ہے جو برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہے، اس پہ خوش بولو یار سب میرا بھی تو گلا ہے نا، میں بھی تو گھنٹے سے چیخ رہا ہوں، اور ابھی میرا ایک اور بیان بھی آگے جا، تو جب میں چیخ رہا ہوں تو تھوڑا سا آپ بھی چیخ لو، گھر میں جا کے جیسے بات کرتے ہو نا بیوی سے، ایسے یہاں بیٹھ کے چیخا کرو بیٹھ کے۔ تو 2 قسم کے گناہ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، ایک ہیں جو ان گناہوں میں مست ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، بھائی مولویوں نے پابندی ہے، بھائی یہ مولوی کچھ تو اور بےہودہ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ گناہ گار ہے جو گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو احساس ہے کہ یہ اچھا کام بولو نہیں، اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اس احساس اتنا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں، وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں۔ تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ جو چاہتا ہے نا، چاہنے میں سیریس ہو، وہ ٹوپی ڈرامے والا چاہنا نہ ہو۔ ایک چاہنا یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے اچھی طرح گناہ کر لوں، جب 55 سال کا ہو جاؤں گا تو چھوڑ دوں گا میں، جب دانت ہی نہیں بچیں گے تو بادام کھانے سے توبہ کی تجھے ضرورت کیا ہے بھائی؟ گناہ سے توبہ اس وقت ہے جب گناہ کا جذبہ ہو، 55-60 میں تو کیا کرے گا تو؟ کیا تیر مار لے گا؟ تو یہ جو گناہ کی ہماری قسم ہے نا کہ چاہتا ہے مگر پھر بھی ہو رہا ہے، اگر یہ چاہتا ہے تو دیکھو اس کو چھوڑنے کے کچھ نسخے ہیں، وہ نسخے اختیار کرنے پڑیں گے۔ اگر کر رہے ہو اس کا مطلب واقعی چاہتے ہو، اور یہ میں مانتا ہوں کہ بعض گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے، وہ ایک دم سے نہیں چھوٹتے، توبہ کر کے بھی بعض دفعہ ہو جاتے ہیں وہ گناہ، لیکن جو اولو العزم لوگ ہیں نا وہ ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں اور ایسا اپنی زندگی سے اس کو نکالتے ہیں کہ دوبارہ اس کی طرف کبھی نہیں لوٹ۔ ایسے مضبوط لوگ بھی ہیں لیکن ایسے بھی بیکار لوگ بھی ہیں، ادھر توبہ کی پھر ہو گیا، پھر توبہ کی پھر ہو گیا، پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی۔ تو ایسے لوگ 2 بلکہ 3 کام پابندی سے کریں، 3 کام جو چاہتے ہیں، جو نہیں چاہتے ان کا تو اللہ میاں نے بتا دیا کہ تمہارا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے، لیکن جو چاہتے ہیں نا انہوں نے 3 کام کرنے ہیں۔ یہ 3 کام کریں گے تو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی یہ چاہتے ہیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن لت پڑ گئی ہے، جب نہیں ملتی تو جسم ایسے ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو طریقے بتائے گا نا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا بھی اس لیے کہ واقعی چاہتا ہے یہ، اب توبہ تو کر لی لیکن جب سگریٹ کی طلب ہوگی تو دل چاہے گا نا، تو جسم ٹوٹے گا۔ تو ایسے ہی بعض گناہ ایسے ہیں جن کی باڈی کو عادت پڑ جاتی ہے، ہینڈ پریکٹس ہو گیا، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا، شراب، زنا، اس کی عادت کس کو پڑ جاتی ہے؟ باڈی کو۔ پھر باڈی چاہتی ہے کہ یہ ہو، اصل علاج تو یہ ہے کہ چھوڑ دو۔ جب چھوڑو گے تھوڑے دنوں میں باڈی چاہنا بولو ختم، کیونکہ عادت بھی تو آپ نے کر کے ڈالی ہے نا، تو چھوڑ کے چھوٹ جائے گی یہ۔ لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہے گناہ تو 3 کام پابندی سے کرو اگر گناہوں کی لت پڑ گئی ہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہو جائے توبہ لازمی کرنی ہے، اس پہ اطمینان کر کے بیٹھ نہیں جانا کہ اب ہو گیا تو چلو یار اب تو ہو گیا، اب ایسا ہے کہ 25-30 مرتبہ اور کر لیں تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے ہم نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہو گیا تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اے اللہ دل سے معافی مانگو، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا۔ پہلا کام تو یہ فوراً کرے وہ۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فوراً کوئی جرمانہ یا کوئی سزا دے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بغیر سزا کے چھوڑنا نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو چلو ہو جاتا ہے، آخر انسان ہے۔ نہیں ہوتا بھائی، انسان ہے تو پھر ٹھگائی بھی انسانوں کی لگتی ہے۔ اپنے آپ کو کیا دینی ہے؟ ایسی سزا دینی ہے کہ دوبارہ گناہ ہوتے ہوئے انسان کو وہ سزا کا تصور آئے کہ بیٹا یہ گناہ فری کا نہیں ہے، اس کی تجھے بھاری قیمت دینی پڑے گی۔ وہ سزا ہر ایک کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، روزہ بھی ہو سکتا ہے، نفلی نمازوں کی پابندی بھی، ہر وہ کام جس میں دل کو تکلیف ہو۔ وہ سزا نہ اتنی بھاری ہو کہ دی نہ جائے اپنے آپ کو، نہ اتنی ہلکی ہو کہ اس سے آپ کو تنبیہ ہی نہ ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ بعض لوگوں کے لیے 1 روزہ رکھنا بھی بہت مشکل ہے، تو وہ سزا میں 1 روزہ ہی رکھ لیں،
کہ جب गुनाह होगा अगले दिन एक रोजा लाजमी रखना है। और बाज लोगों के लिए 10 रोजे रखना भी कोई मुश्किल, बोलो ना, तो 10 रोजे सजा में रखें। बाज लोगों के लिए गुनाह के बाद 1 लाख रुपए सदका करना भी कोई मुश्किल नहीं है, करोड़ों की आमदन है। बाज लोगों के लिए 100 रुपए सदका करना भी क्या है, मुश्किल है, तो वो 100 रुपए रख लें। लेकिन सजा के बगैर अपने आप को छोड़ना नहीं है। ये कितने काम हो गए? 2। इसको मैं मजीद थोड़ा सा डिटेल से बताता हूं। तीसरा काम है दुआ। दुआ ही नहीं छोड़ो, खूब अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो और मांगते रहो, अल्लाह इस गलीज पलीद गुनाह से मेरी जान छुड़ा दे। मैं इकरारी मुजरिम हूं, बागी मुजरिम नहीं हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिनको जब आखिरत से डराया जाता है तो कहते हैं हमें क्या पता क़यामत है या नहीं है। ना ना, मैं मानता हूं इन्न साअत लआतियतुल ला रैब फीहा, अल्लाह एक दिन क़यामत आएगी, तू मुर्दों को जिंदा करेगा, इस गुनाह पे सजा देगा, मैं इकरार करता हूं। तो अल्लाह मुझे तू इस गुनाह से बचने की तौफीक दे दे, आसान कर दे मेरे लिए इस गुनाह से बचना। मैं दावे से कहता हूं मांगता रहेगा ना, इंशाअल्लाह ये गुनाह उसकी जिंदगी से निकल जाएगा। बहुत से नौजवान आते हैं कि हमने हज भी कर लिया, हमने तबलीग में 4 महीने भी लगा लिए, फिर भी गुनाह नहीं छूट रहा हमसे। तो भाई आप कोशिश में लगे रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह छूट जाए। अगर कोशिश नहीं की ना, ये 3 तरीके नहीं इख्तियार किए, तो इसका पता है नुकसान क्या होगा? आज ये गुनाह कर रहे हो ना, कल एक कदम इससे आगे होगा। ये ना समझो कि आज ये गुनाह हो रहा है तो यहाँ ये जो गोरे होमोसेक्सुअलिटी को फैला रहे हैं ना, क्यों? जिना कर चुके हैं ये, अब आगे की तरफ जा रहे हैं ये, और कल इनमें महरम से जिना भी प्रोमोट करेंगे ये, बहनों से। और अल्लाह बचाए, ऐसे अल्फाज लेते हुए भी हमें खुदा का से डर लगता है। ये महरम रिश्तों से भी जिना को लीगल करेंगे कल, क्योंकि उनके यहाँ तौबा नहीं है। तो तौबा जब नहीं है तो हर आने वाला दिन बुराई में एक स्टेप आगे होगा। तो ये 3 काम जो गुनाह के आदी हैं करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका फायदा क्या होगा? लोग कहते हैं यार हम तो तौबा भी करते हैं और सदका भी कर रहे हैं, सजा भी दे रहे हैं, फिर भी नहीं छूट रहा। मैं उनसे कहता हूं 2 काम तो हो रहे हैं ना। नंबर 1, उससे ज्यादा आगे की तरफ नहीं जा रहे। अगर ये काम ना कर रहे होते तो फिर आगे जाते, आगे तो स्टॉप हो गया ना, इसी पे ब्रेक लग गई है। एक फायदा ये हुआ। नंबर 2, दूसरा फायदा ये हुआ कि इस गुनाह की वजह से जहां बुराइयों के पलड़े में बुराई आई है, तो वो जो सजा के तौर पर सदका कर रहे हो या रोजा रख रहे हो, तो एक पलड़े में नेकी भी तो आ गई ना। अबे क्या हो गया भाई? जो खुदा गुनाह पे सजा देता है वो नेकियों पे जजा भी तो देता है ना। तो वो रोजा जाया थोड़ी करेगा तुम्हारा कि जी चूंकि इसने गुनाह करके रोजा रखा है तो रोजा गया ना। जब वो गुनाह पे सजा देगा तो आप अल्लाह से कहोगे क़यामत के दिन, अल्लाह जहां मेरी ठुकाई लग रही है तो वो रोजे कहां गए, उसका बदला भी तो चाहिए मुझे। तो नेकी पे तो 10 मिलते हैं और गुनाह पे 1 मिलता है। मैं समझा पा रहा हूं या किसी जैपनीज को बुलाऊं समझाने के लिए? तो इसका पहला फायदा क्या होगा? आगे मजीद आगे जाने से जो फुहश फिल्में देख रहा है, अगर वो फिल्में देख, अल्लाह ना करे कोई देखना अच्छा काम नहीं है, आदत नहीं छूट रही, लेकिन वो जब देखे कुछ सजा दे तो जिना से तो कम से कम बचेगा ना, वो मजीद आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वो यहां ही बैरियर लगा रहा है। एक फायदा ये। दूसरा फायदा क्या? जहां गुनाह तराजू में वहीं नेकी भी आ गई तराजू में। तीसरा फायदा क्या होगा? ये तादाद बढ़ेगी नहीं। जैसे जो बुराई करते हैं ना, वो करते 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 बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं। जब सजा दोगे तो वो बुराई भी एक लिमिट में हो जाएगी, उससे ज्यादा तादाद में क्वालिटी वाइज भी नहीं बढ़ेगी और क्वांटिटी के लिहाज से भी नहीं बढ़ेगी। तो ये फायदे भी तो कोई कम नहीं है ना। लेकिन आपने सिर्फ इन फायदों को फोकस नहीं करना, फोकस इसको करना है कि इसको हमने अपनी जिंदगी से खत्म करना है, ऐसी की तैसी अज़म करना है। भाई आज नहीं कल छूट जाएगा, कल नहीं परसों छूट जाएगा। लेकिन शैतान मायूस कराता है। शैतान कहता है तेरे बस का काम नहीं है, तूने सदके भी दे लिए, तूने तौबा भी कर ली, फिर भी हो जाता है, छोड़ यार बस। ना 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 भाई, जिस दिन आपने कह दिया ना बस मैं अब इस पे राजी हूं, तो अल्लाह कहेगा इसका मतलब तू जहन्नम में जाने पे राजी है। अगर लड़ते लड़ते जिंदगी गुजर गई ना, बख्शिश के फिर भी चांस हैं। अल्लाह कहेगा लगा हुआ था कोशिश में, तो चल जो तूने किया वो तूने किया, कुछ मैं भी तो गरीबी लगाऊंगा ना। समझ में नहीं आ रही बात? आप भी अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, छुड़वा दे। ये नहीं कहना कि अल्लाह ये बुराई ऐसे ही भी रहे तो भी जन्नत में भेज देना, ये फिर गलत हो जाएगा। कोशिश में लगा हुआ हूं, तू मुझसे ये छुड़वा दे। तो लड़ते लड़ते भी जिंदगी गुजर गई, कुछ गरीबी अल्लाह भी तो लगाएगा ना भाई, कुछ अल्लाह भी तो रहीम है ना, अल्लाह भी तो करीम है। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज करके बैठ गए ना भाई, हमसे नहीं छूट रहा, अल्लाह कहते जब तुझसे नहीं छूट रहा तो हमसे भी तुझे जन्नत में भेजा नहीं जा रहा। जब तू राजी है तो फिर हम भी राजी। अनुलज़िमुकुमुहा, अल्लाह कहते हैं हम तुझ पे हिदायत थोप दें, वन तुम लहा कारिहून, और तू चाहता ना हो, तो ये नहीं हो सकता। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह इस गधे घोड़ों वाली जिंदगी से हमारी भंगियों चमारों वाली जिंदगी, ये लफ्ज याद रहेगा। जब भी कोई दोस्त आके बोला करे ना, गर्लफ्रेंड बोला यार काम भंगियों चमारों वाले कर रहा है, यार काम कौन से कर रहा है?
भंगियों चमारों वाले। और जो कोई शादी किया करे बोलो पैगंबरों वाला काम किया है। दूसरी शादी की है, क्या किया है? पैगंबरों। तीसरी शादी पैगंबरों वाला। चौथी भी की है, बोलो सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला काम कर लिया तूने तो। लेकिन फिर आगे हुकूक भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग शादियां कर करके दाएं बाएं कर रहे हैं सारे मामला, तो हुकूक भी हैं आगे। तो हुकूक तो अदा करने की नियत ही से करता है ना आदमी जो निकाह करेगा। फिर भी बहुत से लोग हैं हुकूक अदा नहीं करते, तो भाई मैं उसका जिम्मेदार नहीं, वो मेरे से पूछ के जुल्म नहीं कर रहे, वो खुद ही कर रहे हैं, तो अल्लाह उनसे क़यामत के दिन पूछ लेगा। नबी ने फरमाया जिसकी 2 बीवियां थी, अदल नहीं किया, आधा धड़ उसका फालिज अदा होगा क़यामत के दिन। तो हलाल को फरोख दो यार, सोसाइटी में फैलाओ, ऐसी की तैसी करो। नौजवान आदमी तो, नौजवान में तो ये सलाहियत होती है, उसको कहीं बम रखने का कह दो, बम रख के आ जाएगा। ये जितने बम धमाके हुए हैं ये सारे नौजवानों ने तो किए ना। लेकिन जब उसको दूसरी शादी का बोलो, यार कैसे यार सोसाइटी में, मैं उससे कहता हूँ यार अगर कोई तुझे ब्रेन वॉश करके बम रखवा देता ना, तू ब्रेन वॉश हो जाता, हूरों की लालच में बम रख के आ जाता। तू वो एक आदमी को किसी ने हूरों की लालच दी कि तू फलां जगह बम रख दे, मरेगा तो हूरें मिलेंगी, होता था ना, वो ब्रेन वॉश कर देते हैं गलत लोग। तो उसने कहा चलो शायद वैसे तो मिल नहीं रही, शायद वैसे मिल जाए। उसने बम रखा, बम फटा, फिदाई हमला करवाया ना, तो बम फटा तो ये मरा नहीं, बेहोश हो गया। अब ये समझ रहा है कि मैं मर गया हूं। तो जब अस्पताल में गया तो काली काली चुड़ैल जैसी नर्सें इसके इर्द गिर्द खड़ी हुई थी, और पुलिस वाले भी थे, उनको तो अरेस्ट करना था इसको। जैसी होश में आए तो जैसे इसकी आंख खुली ना, एक चुड़ैल का हाथ पकड़ के बोलता है बाकी हुरें किधर हैं? बाकी हुरें, तो यार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम हूरों की लालच में फट सकते हो, जो कि गलत है, तो निकाह क्यों नहीं कर सकते यार हलाल की तरफ जाने के लिए, ताकि सोसाइटी में निकाह को प्रोमोट। औरतें भी जिना से बचेंगी, इससे लड़कियां भी बचेंगी जिना से। वो उनके भी बेड़ा गर्क हो रहा है, औरतों का, उनका भी बेड़ा गर्क किया हुआ है, ना अपना फायदा ना औरत का फायदा, बस सोसाइटी को खुश करने के लिए। तो छोड़ा यार, सोसाइटी के खौल से बाहर निकलो, अपने जायज हुकूक के लिए लड़ो, तो यही तो जायज हक है। और कौन से हुकूक है? पेट्रोल हमारे कहने से सस्ता नहीं होगा, वो महंगा और होगा। अभी तो सऊदी अरब ने करेंसी लेना ही छोड़ दी है। मैं सऊदी अरब गया तो वो कह रहे हैं ये क्या लेकर आया भाई तू, पाकिस्तानी करेंसी को दुनिया में ले ही नहीं रहा यार। पहले हम यहाँ से डॉलर खरीदते हैं, डॉलर लेके वहां जाते हैं, फिर डॉलर में रियाल में चेंज होता है। अब थोड़े दिनों में हम टमाटर लेने जाएंगे, बोरी में पैसे लेके जाएंगे, टमाटर लेके, वो 1 टमाटर देगा हमको इससे। तो भाई ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में करने का काम है वो हम कर लें। आप 4 शादियां भले ना करो, खुदा के लिए जिना से तो बचो नहीं। सोसाइटी में रोको इस अमल को, और याद रखो थोड़े लोग ये बचेंगे, क्योंकि सोसाइटी खराबी की तरफ जा रही है। थोड़े लोग ही हैं, तो कुरान कहता है वक़लीलुम मिन इबादी शकूर, थोड़े लोग ही मेरे शुक्रगुजार होते हैं। तो आप अपने आप को, अपनी औलादों को, अपने घर की बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को बचाओ इस अमल से। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता